السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت نال تو میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر جی ناظرین۔ الیکشن دا جو آدھے کہ تبل جنگ جمیں ہوندے الیکشن دا جڑا تبل ہے وہ وج گئے اور انشاءاللہ فروری دی 8 تاریخ کو الیکشن تھیمن پیندا پہ جی جناب۔ انتخابی مہم شروع تھی گئی ہے، جوڑ توڑ بھی شروع تھی گئے، بلکہ ملتان دی سطح تک تے بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئیں۔ وہ لوگ جڑے 1985 دے وچ پاکستان مسلم لیگ نواز دے نال ہن وہ پی ایس پارٹی وچ آ گئے اور پی ایس پارٹی نے ملتان شہر دی سطح تک بڑا شاندار کم بیک کیتے۔ دے نال نال اساں بھی ڈٹھے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنا جڑا معروف حلقہ ہائی اتھاں بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیتا اور اتھاں استحکام پاکستان پارٹی طرفوں جہانگیر ترین دی حمایت دا اعلان کیتے۔ ان دا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا دے اتنے کوئی صورتحال نظر آندی پئی ہے کہ کوئی اتحادیاں دی حکومت آمن دا بھی امکان ہے۔ الیکشن دے وچ کیا تھیندا پہ، کیا عوام ووٹ پاؤن کتے نکل سن اور انتخابی سرگرمیاں اگرچہ ٹھڑ دی وجہ تو ڈھلیاں ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی تیز تھی ویسن۔ کیڑی پارٹی ان خطے دے وچ اگو ویندی پئی ہے، سارے شاندار موضوعات دے نال ساری خوش بختی یہ ہے اور میں سمجھدا کہ سارے کتے آنر ہے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہاں دا ان خطے دی سیاست دے وچ پچھلے 40 سال تو بہت زیادہ تجزیہ ہے، جائزہ بھی گھندن، مسلسل لکھتے پین بلکہ ہن ویلاگ بھی کریندن، روزنامہ نوابت ملتان، روزنامہ خبریں اور دیگر اخبارات دے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی رہ گئے اور صحافت دے حوالے دے نال ایک بہت بڑا نام سائیں جبار مفتی ہوراں تک وہ اساں جی آئیں کو آدیں۔ سارے دوجے مہمان پاکستان مسلم لیگ نواز تو تعلق کے قانون دان ہیں رانا نذیر سعید صاحب۔ رانا صاحب تک ویلکم آدیں ہیں۔ تیجے مہمان میں تو سمجھدا ہم کہ انہوں کو غصہ نہیں آتا لیکن میں ڈٹھے کہ مسلسل جڑے سارے پروگراموں دے وچ یہ شرکت انہوں نے کیتی ہے تے پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے جذباتی بھی تھی ویندن۔ جناب پاکستان پیپلز پارٹی دے مرکزی رہنما ہیں، قانون دان ہیں نشید عارف گوندل صاحب تک کو اساں خوش آمدید آدیں۔ مفتی صاحب جڑا پچھلا ہفتہ گزرے ملتان شہر اور ملتان ڈویژن دی سطح تک اتنا بڑی تبدیلیاں آ گئیں، کیویں دے دے پے ہو کہ وہ لوگ جڑے مسلم لیگ دے نال ایک عرصے تو ہن پی ایس پارٹی چ آ گئے اور او پی ایس پارٹی جن دے بارے آکھیا ویندا بھائی کہ این الیکشن دے وچ ملتان شہر چ اندے کول امیدوار کوئی نہیں اور ہن بڑے شاندار امیدوار آ گئے۔ بالکل صحیح ہے صورتحال، لیکن تساں یہ دیکھو کہ ہر الیکشن کولوں پہلے کچھ نہ کچھ این طرح دے تبدیلیاں ایک گروپ دوجے گروپ اصل چ اسی ساڈے قومی سوچ وہ ذرا گھٹ ہے، ذاتی اور برادری اور حلقے دی سوچ زیادہ یہ ہن پاکستان بھر وچ مطلب ہر جگہ ہر جگہ تقریباً اتھاں بھی موجود ہے۔ وہ جڑے گروپ دی ایک تعصب ہوندا ہے، ایک جڑی یا رفاقت یا محبت تس آکھ سکدے ہو کہ وہ این واسطے نہیں کہ میرے کو فلاں پارٹی پسند ہے، نہیں بلکہ این واسطے کہ جتھا میں کھڑا اتھا بیا آ گئے ہن اتھا میری جا نہیں بنتی، میرے کو بئی جا چاہیے ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو مستحکم کرن کیتے یا ڈیفینڈ کرن کیتے، سیاسی پوزیشن اپنی برقرار رکھن کیتے وہ وال پارٹی تبدیل کرن۔ صحیح یہ جڑا ملتان دا تساں حوالہ دیتے ہیں نا، یہ بھی کوئی ملدا جلدی صورتحال ہے۔ تساں یہ دیکھو کہ جڑے رانا محمود الحسن سینیٹر صاحب مسلم لیگ چھوڑ انہاں دی رفاقت 40-50 سال دی ہے جی بالکل ہی والد صاحب نے مطلب والد صاحب رانا نور الحسن صاحب، اگر میں تو کو ایک یاد کراؤں ایک واقعہ کہ رانا نور الحسن صاحب دا بائی پاس تھی آئی ایم پی ہیں ان ویلے تو پنجاب اسمبلی ضرورت پی گئی کہ جی وہ انہوں دا ووٹ چاہیے۔ صحیح میاں صاحب نے آکھے کہ ہر صورت پہنچو، ڈاکٹر نے منع کر دیتا کہ بائی پاس تھی ہے تو سفر نہیں کر سکتے، جہاز تے نہیں بیٹھ سکتے، آکسیجن دا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جھٹکا لگ گیا، کوئی ٹانکے ٹوٹ گئے، لیکن انہوں نے اپنی قائد دی لبیک آکھے ان دی کال تے اور وہ جہاز تے بہ کے لاہور پہنچ گئے۔ ان دے بعد انہوں کو ہسپتال بننا پی گیا، لیکن قیادت دے نال محبت اور عقیدت دا عالم آئی کہ انہوں نے اپنی زندگی بھی خطرے پا دیتی۔ اے او خاندان۔ اچھا رانا نذیر سعید صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز دوارا تعلق ہے، بڑی شاندار مثال دیتی ہے انہوں نے ایثار دی، قربانی دی کہ جان جڑی تلی ترک کے وہ اسمبلی وچ پہنچ گئے۔ رانا نور الحسن صاحب جڑے والے رکن صوبائی اسمبلی ہن، لیکن ہون جڑے ہے نا کہ ہون اے ایثار قربانی نظر نہیں آتا۔ ہون تے ہے کہ اگر پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیتا تو تساں دوجی پارٹی چلے ونجو۔ یہ اساں کہڑے پاسے ویندے پے ہیں؟ یہ مطلب ڈکلائن والے پاسے ویندے پے ہیں یا مطلب جی مفتی صاحب نے فرمائے کہ پورے پاکستان دا چلن یوں چلدا پے؟ یہ سر یہ ہے کہ یہ تھوڑے سیلفش کچھ لوگ ہو گئے نا
ਕਿ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ को ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗਾ? तो उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਥਾ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕਰ ਗਿਣਨਾ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨਸ਼ੀਦ ਆਰਿਫ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਰਾਣਾ महमूद ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, लेकिन सवाल ये पैदा थींदे कि क्या राणा महमूद ਦਾ अगर वोट बैंक कितना शानदार होवेगा तो नून लीग जी उन्होंने अपनी पार्टी है उन्होंने टिकट ना दे देंदी? नहीं, सबसे पहले शाकिर साहब मैं इस बात का मोतरफ हूँ तमाम मीडिया का, बशमूल आज मैं आपको भी शामिल करूँगा कि मीडिया अपने अंदाज में हर चीज़ को दिखाता है। अगर ये गिलास आधा खाली है आप कहेंगे नहीं आधा भरा हुआ है। अगर कोई शख्स पीपल्स पार्टी में आ जाए तो वो फारिग है, उसको सब्र करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था। अगर पीपल्स पार्टी छोड़ के चला जाए तो जी क्या बात है जी, पीपल्स पार्टी फारिग हो गई, विकेट गिर गई, पीपल्स पार्टी खत्म। गलत पैरा है। माजरत के साथ हमें मीडिया पे बैठकर एक बात रियलिस्टिकली करनी चाहिए। रियलिस्टिक अप्रोच और बात यह है कि राणा महमूद हसन को मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि मेरी पार्टी का वर्कर है वो, मैं उसको डिफेंड करूंगा, इस वजह से डिफेंड करूंगा। उससे बड़ी प्यारी बात की है राणे ने, जब बिलाल अहमद साहब से खड़े हुए थे उसने कहा जी मैं जनूबी पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी में शर्त पे आया हूँ, और क्यों इस वजह से आया क्योंकि आपके सामने जितना मर्जी आप पीपल्स पार्टी की बुराई कर लें, जितनी मर्जी पीपल्स बुग़्ज़ भुट्टो, वो बुग़्ज़ अली की तरह दिल से नहीं निकलता लोगों के, जिनके दिलों में होता है, आप जितना मर्जी कर लें, मगर एक बात कंफर्म है कि इस खित्ते की बला, इस खित्ते की फलाह के लिए, जनूबी पंजाब अलग सूबा बनाने के लिए अगर कोई पार्टी सिंसियर है ऑन पेपर भी और वो ग्रास रूट लेवल पे, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी सिंसियर है। तो आज के जो 2024 के जो इलेक्शन होना है, हर वो शख्सियत, हर वो शख्स जिसका जो कदावर हो, आम वोटर हो, जिसको ये पता है कि हमें तख्ते लाहौर से निजात लेनी है, हमने जुमी सूबा बनाना है, बेशक जो मर्जी नाम रखते हैं, नून लीग की तरह नहीं करना कि 2 सूबे बना दो, बालपुर कर दो, अलग कर दो। अच्छा। वो पीपल्स पार्टी में आएगा। राणा महमूद हसन साहब के आने से बिल्कुल कोई दब दोस्त आता है पार्टी में, वो स्ट्रेंथन होती है पार्टी, और हर दोस्त को अपने वजन के साथ पार्टियां लेती हैं। लेना और पार्टी से जाना ये अलग तरीका है। कोई शख्स अगर किसी फोन पे चला जाए वो और बात है, और कोई शख्स अपने खित्ते की भला के लिए आ जाए वो और बात है। राणा महमूद हसन की जो पीपल्स पार्टी में आमद है वो खित्ते की भला की शक्ल देखनी चाहिए। वो किसी टेलीफोन कॉल की वजह से वो किसी पार्टी में नहीं गया, जिस तरह नून लीग को इकट्ठे किए जाते हैं, जिस तरह पहले पीटीआई को। अच्छा नशीद साहब, गुजारिश ये है कि ये मतलब असां फार्मूला देते पे हैं बड़े अरसे तो कि ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾर्टी ਚ ਆਵੰਦੇ उनकी सारी बुराइयां, उनके सारे गुनाह जड़े हैं वो धुल वेंदन। ये क्या रवैया दुरुस्त है? ये मुझे शायद साहब, ये मेरा सवाल, आपके सवाल मेरा सवाल है, क्या कभी ऐसी जो ड्राई क्लीनिंग मशीन है वो पीपल्स पार्टी के लिए लगी है? कभी नहीं लगी। या वो लगती है नजरिया ज़रूरत के तहत, या वो लगती है ड्राई क्लीनिंग मशीन 2002 में, या वो लगती है फिर 2007 में दोबारा आकर जब नून लीग को गवर्नमेंट दी गई पंजाब में, या वो लगती है 2013 में, या वो लगती है 2018 में। क्या कभी ड्राई क्लीनिंग 2008 पीपल्स पार्टी जीती है? हम तो हमेशा लड़ने वाले लोग हैं भाई, हम तो हमेशा से अगेंस्ट। नशीद आरिफ गोंदल साहब, बड़ी तवील बहस थी वैसी, एक बड़ा अहम सवाल असा जवाब मुफ्ती साहब को करना चाहूँ। मुझे साहब मुस्लिम लीग दे मौजूद हैं हामी, पीपल्स पार्टी दे हैं, एक पार्टी का नुमाइंदा इतना मौजूद कोई नहीं, लेकिन वो पार्टी भी एग्जिस्ट करेंदी पई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगरचे उन्होंने कोलों उन्हों का इंतखाबी निशान वापस घिन किया गया, अगर ई सारे सिनेरियो दे विच पीपल्स पार्टी, नून लीग या कोई बे वो लूज़ कर वेंदन और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद जित वेंदन, और वो सारे आखसन के असां वो मतलब तहरीक इंसाफ वेंदे पे वल मंजरनामा की वजह बन सी। देखो पहली गल तो यह है कि ई वेले जी सूरत हाल नज़र दी पई है वो ये है कि तुसां बहुत सारे इकदाम इन तरह के जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए, लेकिन पब्लिक की जी सपोर्ट आई उनके कोई कमी नज़र दी नहीं पई। उसकी क्या वजह है समझते हो? मैं ये समझदा है कि साढ़े मुल्क के अंदर नज़रियात कोलों भी अगे शख्सियात हैं, जिहड़ी जिस शख्सियत का ना गिनना सरकारी मीडिया ते बैन कर दिता गया, उनकी जिहड़े मनन वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अपनी जगह ते खड़े हैं। आम आवाम दे अंदर ये मैं पहले भी दी आखा आई कि देखो इंतखाबी निशान का वोट क्या नहीं, क्यादत का वोट है।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਲ ਕੋ ਜੁੱਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਲਾਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਠੀਕ ਹਨ? ਇਹ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਥੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਸਨ? ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੰਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੰਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੰਜਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਅਹਿਸਾਸ ਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰਾਣੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮੇਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਥੀ ਗਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ 1.5 ਕੋਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPA ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਆਮਿਰ ਸਈਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਤਾਰਿਕ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ को नहीं ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ। ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਖਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 2008 ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ 2024 ਚ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਇਸ ਦਫਾ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਸਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸੰਡੀਰ ਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ MNA ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੌਕਤ ਬੋਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਕਬੂਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਿਕਟ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ MP ਹਨ ਤੋ ਇਹ ਔਰ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸੰਡੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ MP ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਿਕਟ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਦ ਆਰਿਫ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ क्या राय है? देखिए जी, बिल्कुल सही फैसला है। ऑटोनोमस बॉडी जो वर्क करती है उनके अपने स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं, उनके अंदर आप रिट्स पिटीशन में इनमें हाई कोर्ट्स जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती। एक ऑटोनोमस बॉडी की अपनी रेगुलेटरी जो है उनकी रूल्स होते हैं, उनके लॉज होते हैं। और देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में लाइव जो चल रहा है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, उसने ये बात बड़ी अयान लोगों के सामने कर दी है कि बड़े बड़े वो नाम जो करोड़ों लाखों रुपया फीस लेते हैं उनके पास बिल्कुल बेसिक की तैयारी भी मुकम्मल नहीं होती। अगर पीके इंसाफ ने अगर उनका ये बल्ला छीना है तो दे हैव टू ब्लेम देमसेल्फ ओनली, दे हैव टू ब्लेम देयर लीगल टीम, दे हैव टू ब्लेम देमसेल्फ ओनली। एक बंदा अगर एक कॉमन सेंस है इस चीज की कि मैंने टिकट लेनी है पार्टी से, अभी भी टिकट्स लिए हैं लोगों ने, तो क्या पार्टी कभी भी नकद पैसे नहीं लेती, हमेशा पैसे बैंक में जमा होते हैं। आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हो PTI का और आप पैसे कह रहे जी पैसे किधर करिए, हमने नकद जमा करा दिए थे, क्या ये भी कोई कॉमन सेंस बनती है इस चीज की? तो ब्लेम अपने आप को करना चाहिए। 9 मई का ब्लेम PTI को अपने आप को करना चाहिए। स्टेट रियासत का ये काम होता है, एक माँ की तरह, एक बड़े की तरह अपने बच्चों को, जो आवाम होती है उनको संभालना होता है। एक मिसाल अगर मुझे दे, 1 मिनट की मिसाल में देना चाहूंगा। एक बच्चा छोटा होता है ना जी, एक सॉकेट लगा होता है बिजली का,
उसका दिल होता है कि उसके अंदर उंगली डाल दे वो। रियासत ने उसको रोकना होता है, माँ ने रोकती है, नहीं रोकता बच्चा, पहले वो उसको टेप लगा देती है, ऊपर कर देती है, फिर उसको मार के रोकती है कि वो उसके लिए फैटल है। तो हर वो चीज जो रियासत के लिए फैटल है, उसके लिए रियासत ने अपने काम करने होते हैं, उन लोगों का कला कमा करने के लिए जो एंटी स्टेट वायलेंस की या एंटी स्टेट लोगों को उभारते हैं। तो इस वक्त 2024 का इलेक्शन बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख मुतय्यन करेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर मुतय्यन करेगा। और इन जैसे मुफ्ती साहब मेरे सीनियर हैं, जैसे उन्होंने बात फरमाया कि अवाम में एक जो पजराई है ना जी अवाम की, ये सेल्फ क्रिएटेड पजराई है। आप एक दफा इलेक्शन होने दें, आप नॉर्मलाइज होने दें, अवाम को पता चलने दें कि कौन उनको आगे लेके जा रहा है। अभी तो अब 16 महीने पीडीएम को निकाल देते हैं ना जी, टीवी पे बैठकर 16 महीने का सिर्फ तज्जिया करते हैं, उससे पहले 3.5 साल छोड़ देते हैं। आप ये छोड़ देते हैं कि उससे पहले सोने का क्या रेट था, डॉलर का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, ये महंगाई क्यों हुई, ये सब आवाम दी याददाश्त इतनी अच्छी कमजोर है, हमारी कौम की याददाश्त असल गाल है। बिल्कुल। अच्छा राना नज़ीर साहब, तुसां तजिया करेंदे पे हावे गिलानी साहब दे हलके दा, जहांगीर तरीन दे मुकाबले दे उत्ते नून लीग दा उम्मीदवार कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी ਦੀ क़यादत ने फैसला किया कि IPP ਨਾਲ चुके इतिहाद किया ਤੇ पार्टी ने जहांगीर तरीन ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ नहीं ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया। बहुत सारी जगह ਤੇ IPP ने अपने कैंਡੀਡੇਟ नहीं ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, लेकिन चंद हल्कियां च चूंकि इतिहाद हो गया ਸੀਗਾ, इसलिए नून लीग ने अपने कैंडिडेट नहीं देते और इन्हों टिकट जी नशीद साहब, और इस इलेक्शन में एक बड़ी मजेदार बात उसके होती है। नीचे जो है मुस्लिम लीग नून के दोनों MPA उनको टिकट दी गई, शायद महमूद खान को दिया गया और बाबर शाह को दिया गया। इस इलेक्शन में एक बड़ी मजेदार बात होती है, कर ले मैं तुम्हें, हाँ जी, वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा ये रिजल्ट आएगा और ये हल्का इंशाल्लाह ताला दोनों सीटें। अच्छा, लेकिन दूसरे हल्के दे विच भी यो सूरत हाल है कि उत्थां जिहड़ा तुहाडा पुराना मुस्लिम लीगी हाई जी सईद अंसारी दा हल्का हाई वलबुंदा आमिर सईद अंसारी को टिकट दिता गया, वो भी मतलब को ड्रॉप करके तो उत्थां जावेद अख्तर अंसारी को टिकट दिता गया, वो PTI तो ताल्लुक है उन्हां दा। तो सवाल किवें मतलब है अवाम दे सामने पेश हो? जावेद अख्तर अंसारी को जो टिकट दिया गया जी, इनको सबको इनके सबके इंटरव्यू किया गया, इनका सबका रिकॉर्ड चेक किया गया, इनका सबको पार्टी की आदत ने बड़ी सोच समझ के टिकट दिया। पार्टी ने टिकट देना होता है विनिंग कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट नजर आए कि उसकी वर्थ ज़्यादा है। पार्टी ने ये महसूस किया कि डॉक्टर जावेद अख्तर अंसारी की वर्थ ज़्यादा है। नहीं मतलब है जिहड़ा पैनल है तुहाडा जी, तो समझ दो कि पैनल तक विक्ट्री स्टैंड ते पहुंचा रहे सी इंशाल्लाह ताला। मैं पूरी मुझे नशीद आरिफ गोंद हमें साहब पूरा तुसा क्या आदत यकीन पे है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग बात नून करूंगा तमाम सीटें जीतेगी और 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। 2024 का इलेक्शन चूंकि मुफ्ती साहब भी शायद जी थोड़ा जी सा कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 से जो 18 तक हुकूमत की है और हर चीज़ में उन्होंने डेवलपमेंट की में तरक्की की, मुल्क को तरक्की दी, उन्होंने मोटरवे बनाए, उन्होंने CPAC मुल्क में लेकर आए और उन्होंने चीज़ महंगाई पे कंट्रोल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घन सर की वो ऐसे लेके आए जिस तरह नवाज साहब ने हर कोल भी अपने जिम्मे ले लिया था, इस तरह वो प्रैक्टिकली जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेकर आई CPAC को और उस पे काम करवाया और बड़ी तेजी से करवाया उन्होंने, एग्रीमेंट उन्होंने किए। तो उसके बाद जो चीज़ों का कंट्रोल था, महंगाई का कंट्रोल रखा उन्होंने। 2013 से लेकर 18 तक चीज़ें कीमतों की कम हुई, ज़्यादा नहीं हुई। डॉलर की कीमत 105 से लेकर 92 रुपए तक आ गई, कम हुई, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों की कीमतें कम हुई। आवाम को ये बातें अच्छी तरह याद हैं। उसके अलावा एक अहम चीज़ है जो कि 18 घंटे यहाँ लोड शेडिंग होती थी बिजली की। पीपल पार्टी का दौर 2008 से 13 तक था, इन्होंने बिजली के लिए कुछ काम नहीं किया, जबकि अवाम इतनी तंग हो गई कि हमारी फैक्ट्रियाँ बंद। राना साहब मैं तुहाडे वाले पासे दोबारा आना, लेकिन पहले मुफ्ती साहब वाले पासे। मुफ्ती साहब ये असां प्रोग्राम के आगाज़ तो गिनके होने तक असां इहो डिस्कस करते पे हैं कि PS पार्टी वाला नून लीग चला गए, नून लीग वाला PS पार्टी चला गए, तहरीक इंसाफ वाला फलानी पार्टी चला गए। सर को नज़रिया ये अवाम की खातिर सारा कुछ थींदा पे या अपनी खातिर थींदा? अपनी खातिर। एक जुमला जवाब यह है कि अपनी खातिर सोलो फ्लाइट जी होनी। दूजी गाल जी ये मैं पहले भी अर्ज की थी कि जाती और ग्रोही या खानदानी मफादात को अगे रखे न, लेकिन जी इतना गाल थी ना तुसा कि जी पिछली दौर हुकूमत जो दौर आई पीपल्स पार्टी का या तो PTI का, वो क्या कुछ थी। कोई शक नहीं कि पब्लिक आवाम की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन ये भी तो देखो ना जिहड़े हुकूमत आई PTI की, इवें PTI का नुमाइंदा कोई नहीं बनना, वो जवाब देवे कि उन्हें दौर के अंदर जी महंगाई की सूरत हाल आई, उन्होंने पॉपुलैरिटी का ग्राफ जड़ा है, मकबूलीयत का ग्राफ वो तले वेंदा पिया। बिल्कुल इवें है। ये जिहड़ा उन्होंने हुकूमत खत्म करते
PDM ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੰਦੇ ਹੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸਖਤੀ ਆਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ। ਤੋ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ को भी लूडो ही समझो। अच्छा, लोग दाएं बाएं अगे पीछे थींदे रहंदे और कई वाले कहीं दा छक्का आ गया ते नजरियाती जरा कोई ये नारे रह गए किताबां च लिखा रह गया हुण नजरियाती सियासत नजर दी कोई नहीं। खाम वड्डी पार्टी रशीद आरिफ गोंदल साहब तुसां ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਆਨ तुसां वो ਵੇਲੇ बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट और वल तुसां गुफ्तगू करने की कोशिश की थी, क्या आखना चाहते हैं? नहीं, पहले तो मैं ये कहता कि एक लार्जर स्केल में देखा जाए या सिर्फ मुल्तान को देखा जाए, 2024 के इलेक्शन में एक बात बिल्कुल ओपन हो गई है, पीपल्स पार्टी अगेंस्ट ऑल। आप सिंध में चले जाएं, पीपल्स पार्टी अगेंस्ट ऑल, पूरी कोशिश नवाज शरीफ ने की है हर बंदा इकट्ठा करके सीट एडजस्टमेंट करने की। पंजाब में देखा जाए, आप कहते थे जी हम पंजाब में कमजोर हैं, पार्टी खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, पर आज भी देखें, मुल्तान में देख लें, लाहौर में देख लें, हर जगह देखें, पीपल्स पार्टी अगेंस्ट ऑल। नून लीग को पीपल्स पार्टी का छोटा जा एक मतलब गाल करना चाहता पंजाब की सतह तक तो एक बड़ी महफूज सीट आई फैसल साले हयात जी, उठा तारे को केड़ा उम्मीदवार आए? देखिए फैसल साले, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा उम्मीदवार है। फैसल साले याद साहब को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उनके सेटअप कुछ और है। अच्छा, हाँ, उनका क्योंकि वो लोकल इलाके के ऊपर आकर उनका थोड़ा सा वो मजहबी तंजीमी सेटअप उनका रहता है, उनका को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उनका सेटअप और है। अच्छा, उन्होंने अपना देखना होता है सेटअप कि कहाँ पे सेफगार्ड है, दूसरा फिर पार्टी वहां जाएगी तो उन्होंने वो सेटिंग करनी होती है। मैं जो अपनी बात मुकम्मल कर रहा था कि इस वक्त भी मुल्तान में देख लें, नून लीग की एडजस्टमेंट काफ से भी हो रही है, IPP से भी हो रही है, हर एक से हो रही है। अगर ये इतने स्ट्रांग होते रियलिस्टिकली तो ये पीपल्स पार्टी एडजस्टमेंट करती है ना IPP के साथ। लेकिन नहीं, सालेक हुसैन ने आखे मगर उसने ना इनकार भी नहीं किया, मतलब है, मगर की उसके साथ। लेकिन ANP तोरे नाल है, KPK दे विच ANP तोरे नाल खड़ोती है। बहावलपुर में दे दी सीट उनको काफ लीग को, उनके बच्चों को साल के बारह के मुकाबले बंदे खड़े नहीं किए। एडजस्टमेंट तो लाहौर शहर जो ये कहते हैं नवाज शरीफ का गढ़ है, नवाज शहर, वहां पे 2 सीटें कौन चौधरी को दे दी है और 1 सीट अलीम खान को 2 सीटें दे दी हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि वन अगेंस्ट ऑल, पीपल्स पार्टी अगेंस्ट ऑल। और फैक्ट भी यही था शाकिर साहब, ये आप मसनूई तरीके के साथ मसनूई ऑक्सीजन देकर जब आप लीडर पैदा करने की कोशिश करते हैं तो वो लीडर नहीं बनते, वो मुल्क पे बिगाड़ पैदा करते हैं। काश 2024 में इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझ आ जाए कि जब भी अवामी लीडर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे आई तो पाकिस्तान का आइन बन गया, एक पेज पे आई पाकिस्तान का एटम बम बन गया, एक पेज पे आई पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी बन गई, एक पेज पे आई पाकिस्तान को मजीद तरक्की की तरफ लेके जाते हुए आपने 18वीं तरमीम वगैरह चीजें बनानी शुरू कर दी। 24 में भी खुदा के लिए अगर इस्टेब्लिशमेंट और अवामी लीडरों को आने दें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। और ये जो 3-4 साल का ये जो एक ड्रोना ख्वाब जो पाकिस्तान में आया हुआ है, इंशाल्लाह भी आपने फरमाया, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमारी यादाश्त कमजोर है, हम जल्दी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तरक्की का जब सीजन आएगा हम जल्दी भूल जाएंगे और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी नई तारीख लिखेगा, ये मेरा ईमान है बतौर। अच्छा मुफ्ती साहब जी, 8 फरवरी को जो भी जीतेगा जाहिर है वो अवामी ताकत से आएगा, जाहिर है। और बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस वक्त खुल्लम खुल्ला किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और जो लोकल एडजस्टमेंट्स है ना, इतराज़ किया जा रहा है कि फ़लाँ को बिठा दिया, अपना पक्का कैंडिडेट था, दूसरे को सपोर्ट कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बड़े अरसे के बाद एक सियासी मूव, एक सियासी चाल चली है। वो ये कि कुछ सीटें छोड़ के जहाँ उनकी पक्की पक्की समझी जाती थी, उन्होंने पूरे सूबे, पूरे मुल्क के अंदर एक ख़ास सियासी कुव्वत की हिमायत हासिल कर ली। अगर उन्होंने 7 कौमी की और 12 सूबाई की सीटें एडजस्ट करके और हर जगह पे अगर 1%, 2%, 3% भी हिमायत हासिल कर ली एक्स्ट्रा अपनी असल वोट बैंक से, तो बहुत सारी सीटों के ऊपर फैसला होता ही 1000-2000 से वो सीटें वो निकालने में कामयाब हो सकते हैं। वैसे तो मैं समझता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर बिलफर्ज किसी कई मरले उत्ते आके
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਵਰਲਡ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿਤਨਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਸੂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪੈਣ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ थे ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕहीं ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਸਰਵੇ ਚ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨੈਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਚ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਗਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਕੌਕਟਡ ਹੈ, ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਘੜਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਲਪ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੋ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸਟਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਇतना लेट क्यों थी गए? साउथ पंजाब मुस्लिम लीग नून हमेशा ने कभी भी मुखालफत नहीं की साउथ पंजाब सूबे की, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने तो ये कहा है कि लास्ट जो थी टेनोर उसमें कि हम 2 सूबे बना देते हैं। रियासत बहावलपुर चूँकि कदीमी रियासत थी, उनको उनका अलहदा सूबा बना देते हैं और साउथ पंजाब मुल्तान को हेडक्वार्टर बना के ये अलहदा सूबा बना देते हैं। तो मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग उनका कभी भी इसकी मुखालफत एक सूबा क्यों नहीं बनाना चाहते? तो सर 2 सूबे वाले पास से क्यों वेंदे पे? एक सूबा इसलिए नहीं बन रहा कि बहावलपुर वाले इत्तेफाक नहीं करते, यहाँ तनाज़ात पैदा होते हैं। वो कहते हैं फिर बहावलपुर सूबा बनाओ, ये यहाँ मुल्तान वाले, हम लोग यहाँ वाले कहते हैं कि मुल्तान सूबा में राय अम्मा तकसीम है। जी ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਕਾਦਨ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ। ਕੁਝ ਆਦਨ ਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵਜੇ। ਉੱਥਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਕੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਇਹ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਡੇਰਾ गाजी खान डिवीजन है, इत्थां दी राय आमद ते अच्छे असरात कहना हो सकते। नशीद आरफ गोंदे साहब, क्या समझते हो कि साउथ पंजाब दी आवाम सूबे दे नाम दूते वोट दे सकती है कई पार्टी को? बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब CM रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब रहे हैं। जब भी इनको हुकूमत मिली है, दी गई है, इन्हें सेलेक्ट किया गया तो 2/3 के साथ किया गया। और हमने तो जब गवर्नमेंट हमारे पास थी, कौमी असम्बली में गिलानी साहब ने की थी, हमने तो कौमी असम्बली में मिसाइल में भी करारदाद पेश कर दी थी। मगर आइन ये कहता है कि जिस सूबे को आपने तकसीम करना है उस प्रोविंशियल असम्बली के अंदर आपको मूवमेंट होनी चाहिए। वहाँ हमेशा नून लीग ने आके उसकी मुखालफत की। बेसिक ये है कि अगर यहाँ पे जो पंजाब का सूबा बनता है, रेवेन्यू के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, बाकी हवाले से लाहौर को नुकसान होगा। और उन्होंने अपनी ग्रिप जो है जो मजबूत रखी है वो इसको निकालना अपने हाथ से नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते कि हमारा लेकिन जड़ा ई वेले मतलब स्ट्रक्चर चलदा पे उन तो आवाम तो मुतमईन कोई नहीं। जड़ा देखिए आवाम को वोट का राइट है 8 तारीख को। मुल्तान शहर है और जो जुम्मी पंजाब है बलखसूस, जिस तरह भी एक पहले भी एक शख्स का जिक्र हुआ कि उसको टिकट गिलानी साहब के मुकाबले में दिया गया। मुल्तान शहर वो शख्स था कि जब वो गिलानी साहब के दौर में वो अपने वॉशरूमों तक सड़क लेकर चला गया था। और आप खित्ते का हाल देखिए अपने करने के लिए, और उसने एक बंदे को ठोकर मार के वहाँ चला गया। अगर मुल्तान शहर को, मुल्तान के बासियों को जो इतना खूबसूरत शहर मिल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, इनको इसको देख के अगर ये वोट कास्ट करें, उस शख्सियत को, उस पार्टी को वोट दें जो इनको आगे साथ लेके चलेगी। तमाम लोग, यहाँ से प्रेसिडेंट भी आए जी हमारे खत्ते से, सदर भी हमारे खत्ते से आया है, गवर्नर भी रहे हुए हमारे खत्ते से, किसने खत्ते के लिए काम किया, वज़ीर आला भी रहे हुए। आप बताइए जो गिलानी साहब के दौर में काम हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जो सिग्नल फ्री आपका जो सिटी बन गई थी, बहुत कम दुनिया में सिटी है सिग्नल फ्री सिटी जो है। तो इसको देख के तो मुझे लगता है 8 को इंशाल्लाह मुल्तान शहर को अपना जो है हक अदा करना चाहिए, और गिलानी फैमिली को और पीपल्स पार्टी को टोटलिटी के अंदर इस सूबे से वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे उम्मीदवार भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा अच्छे हैं और हम खिदमत के मूड में। और सबसे बड़ी बात, हमारा लीडर खुद पंजाब आके बैठा हुआ है। मुफ्ती साहब, एक बड़ा अहम रहनुमा जड़ा मुसलसल
اسمبلی ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਥੇ ਜਾਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆਈ ਉਹ ਵੇਲੇ PTI को छोड़ ਦਿੱਤਾ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਜ਼ਾਇਦ ਬਹਾਰ ਹਾਸ਼ਮੀ को ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਈ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ PTI ਦਾ जी PTI में, तो वो जाहिद बहार हाशमी साहब के ऊपर ही सारा वो डिपेंड कर रहे हैं। ये अलहदा बात है कि जब वो ज़िला कौंसिल के मेंबर थे बन गए थे तो उसके बाद की जो कारकर्दगी थी उससे अवाम में कोई बहुत ज़्यादा पजीराई या उनको शायद नहीं जाहिद बहार हाशमी। अच्छा, तो अब मैं लेकिन उससे पहले एक बात का मैं तजिया अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो है साउथ पंजाब सूबे के हवाले से। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनकी क़यादतों को ये सूबा वारा ही नहीं खाता। मैं आपको बताऊं कि जब आपको जनूबी पंजाब या सराइकी सूबे का नारा लगाते हैं तो आपका जो पक्का वोट बैंक है जो GT रोड कहलाता है वहाँ पर नून लीग और मुस्लिम लीग और PTI भी का भी वोट बैंक है, तो वो समझते हैं कि हम वहाँ वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अच्छा, तो ये अपर पंजाब वाले पास अपर, और अगर सूबा बनता है तो इक़्तिदार आधा रह जाता है। अपर पंजाब सेंट्रल पंजाब में रह जाएगा, साउथ पंजाब में इक़्तिदार नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि साबका दौरे हुकूमत दे विच PTI ने बड़ा जरूरतमंदाना इकदाम चाहते कि था मतलब कम से कम सेक्रेटेरिएट तो बना छोड़े ना, सेक्रेटेरिएट बनाया है। मादर क्या किया वो इसी के वजह इत्तेहाद, मुफ्ती साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, जो इत्तेहाद जो साउथ पंजाब के इत्तेहाद पर क्या नाम था उसका, वो जो सारी उनकी प्लेट में डाले गए थे बंदे लाकर सुबह बनाएंगे और उनसे एग्रीमेंट हुआ जी कि 100 दिन में होगा, तो क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। सुबह माजरत के साथ PTI के दौर के अंदर जो 3.5 साल के अंदर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल अगर कोई अच्छा मौरिख हो जो कि वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो और वो कोई एक भलाई नहीं लिखेगा मासवा इसके कि उसने आवाम को बच्चों को गालम गलोज जबान पे दे दी, इसके अलावा कोई उनके अंदर पंजाब में और मरकज में उनकी अपनी हुकूमत थी लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और सिर्फ नौजवान नस्ल को जो है ना उनका अखलाक तबाह किया और उनको बदतमीजी सिखाई है। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब तुसा होने ही गाल कीती है मेरे हमारा मंशूर जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, हमने खिदमत करनी है, मुल्क को डेवलपमेंट देनी है, तरक्की देनी है और गुर्बत और महंगाई से हमने लेकिन एक सवाल हमारा ये मेरे हमारा मंशूर बिलावल साहब बड़ा क्लियर किया है, जो हमने एक ऐसा हॉस्पिटल जरूर बनाना है जहाँ पे इनके लीडर भी इलाज करा सके। हमारे इलाज तो पंजाब सिंध में होते ही होते हैं। अच्छा, हमने अपने मंशूर अच्छा राणा साहब मतलब तुसा सेक्रेटेरिएट के खिलाफ गाल करते पे हो ताकि याद हो सी कि सेक्रेटेरिएट की सब तो पहली तजवीज़ रफीक रिजवाना साहब ने जो वेले गवर्नर हैं वाले एक 22 रुकनी कमेटी बनाई गई, उन्हें उनसे सिफारिशात दित्तियां, जिन्हें बाद ये सेक्रेटेरिएट वाले पास आए उन सिफारिशात को मद्देनज़र रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्तान और बहावलपुर दे विच सेक्रेटेरिएट के ऑफिस बना के तो ये मतलब सारी सूरत हाल है, तुम क्या दो? ये दुरुस्त है, यही बात मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सूबे की मुखालफत नहीं की, लेकिन चाहते ये हैं कि एमिकेबली जो भी मामलात हों अवाम की राय से हों, अवाम के राय का एहतराम करते हुए हों। इसीलिए ये जब रफ़ीक रिजवाना साहब गवर्नर थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि चूँकि तनाज़ा पैदा हो रहा था कि मुल्तान में बनाया जाए, सूबा बनाया जाए या वहाँ बहावलपुर बनाया जाए, उधर तहरीक चल पड़ी थी बहावलपुर सूबे की, तो उसको मीट करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है जी ये तजवीज़ आई, ये मुनासिब है कि एक सेक्रेटेरिएट वहाँ बना दी जाए, एक यहाँ बना दी जाए, तो और फिर इन फ्यूचर जो है जो अगर अवाम का इत्तेहाद कायम होता है तो राय से मुतफ़िका राय से एक सूबा भी बन सकता है, एक जगह पे सेक्रेटेरिएट रह जाएगा, एक जगह मुकम्मल सूबा हो जाएगा, यानी यहाँ से वो वहाँ मेंबर आते जाते रहेंगे, मतलब जो सेक्रेटरी वगैरह होंगे लोगों के काम होते रहेंगे, या अगर नहीं होता तो फिर 2 सूबे भी बन सकते हैं। साहब तुसां सारी जिंदगी मतलब वोट कास्ट कहते रह गए हो, एक सवाल जहन चाहता पे कहीं तुसां मंशूर पढ़ के भी वोट दिता? मैं जनाब को इन हवाले नाल दिलचस्प गाल करना, असां जिहड़े ला कॉलेज पढ़दे आसे तो एक टॉपिक आ गया कि सियासी जमातां दे मंशूर थे, फैसला थिया कि तमाम जमातां दे मंशूर हासिल करते तकाबली जायजा गिदा वंजे। असां उन वेले टुरे
ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਸੋ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲਵੀਆਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ वो था ही नहीं हो गए। ਉਹ ਵੇਲੇ 77 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਸਤਕਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਸਤਕਲਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਾਲੂਮਨ ਅੱਛਾ। ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ को देंदे रहे। बस ये सही गल सही गल। अच्छा, मतलब ज़ाहिर सारी जिंदगी गुजर गई तुहारी तजिया करेंदे होए, इलैक्शन देदे होए, क्या समझदे हो कि ई इलैक्शन दे विच टर्नओवर कितना रह सी? टर्नओवर डिपेंड करेंदा है जी ये ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਪਈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ, ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਵਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੱਲ ਠੰਡ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਘਟ ਵੈਂਦਾ। तो पाकिस्तान वैसे ही 40-45 तो उत्ते घट ही वेंदा ते देखो इन दफा भी ये रावण का इम्कान। राणा नज़ीर साहब जी, मेरी राय है कि ये टर्नओवर इस दफा पहले से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर बाइकाट कर जाएंगी फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार बेशुमार हर हल्के में 40-40 उम्मीदवार खड़े हैं, वो अपने अपने वोट ले आएंगे खींच के और वो वोट डलेंगे और टर्नओवर जो है ना थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। समझते हो कि जो उम्मीदवार है वो अपने सपोर्टर्स को अपने वोटर्स को मोटिवेट करे और टर्नओवर बहुत अच्छा रहे सी। इलेक्शन कमीशन ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਰਕਰਸ को ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਥੀ ਵਜੇਗੇ ਕਿ उम्मीदवार ने ये हर दफा होंगे, ये पाबंदी हर दफा होंगे, लेकिन अमल नहीं आज तक नहीं थे ना। मोटिवेट तो कर सकते हैं। टर्नओवर को डिस्कस के मेरा व्यू ये है कि बजाय टर्नओवर हमें ये देखें इस इलेक्शन की सेंटिटी क्या रहती है। अच्छा, इस इलेक्शन ये बहुत क्रेडिबिलिटी और सेंटिटी सिलेक्शन की जो है जी ये पाकिस्तान का तयन करेगी, पाकिस्तान के फ्यूचर का तयन करेगी। अच्छा, दुआ है बतौर पॉलिटिकल वर्कर कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी हो, अवाम अपना वोट दें, उनका राय है, जिसको मर्जी वोट देना चाहे आज़ाद को दें, पार्टी को दें, मंशूर पढ़ के दें या चेहरा देख कर दें, ये अवाम की राय है जो उन्होंने क्या चाहना है। और अवाम की राय को इंशाल्लाह हम तो हमेशा मानते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान जो है उसके अवाम अच्छा फैसला करे 8 को और वो अपने फ्यूचर के हिसाब से फैसला करें। और जो एक मखसूस बबल है मुझे उम्मीद है कुछ तो वो ख़त्म हो चुका है और कुछ इंशाल्लाह 8 को ख़त्म हो जाएगा। ये बात भी इंटर रिलेटेड है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। तुसा अगर ये तासुर हो सी कि जनाब कहीं एक पार्टी को प्रमोट किया वेंदा पे तो वल टर्नओवर घट वे सी और अगर मुकाबले की सूरत हो सी फिजा हो सी तो वल टर्नओवर बेहतर थी वे सी। अच्छा, 3-4 शैवां जिहड़ियां हैं ना बड़ियां अहम अजकल असां डिठन माजी दे दूसरे हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान दा बयान कि इलैक्शन अगू वजना चाहिए, वल सैंड दी करारदाद करारदादा इलेक्शन कमीशन ने आज भी रिजेक्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, वल जो मतलब एक ब्या अजकल जो पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान दी आवाम मौसम की शिद्दत है बहुत ज़्यादा, ठंड है बहुत ज़्यादा, क्या इलेक्शन अगू बन सकते हैं? एक गल तो मौसम के हवाले नाल दसा दिओ कि पंजाबी च एक बड़ा मशहूर जुमला है आई बसंत पाले उड़ंत। बसंत 4 ਤੋਂ 6 फरवरी के दरमियान मनाई वेंदी है, जिसले वो आंदी है तो जी शिद्दत होंदी ना सर्दी की ये घट वेंदी। मुफ्ती साहब असां बचपने सुनते आसे कि जेड़े वेले मार्केट बेर आ वेंदे इहदा मतलब है सर्दी ठंड खत्म थी गई है, गर्मी आ गई है, शदीद सर्दी दे विच बेर मौजूद है। असां ये हुण मतलब जेड़ी मिसालां हैं साइंस की तरक्की है ना जी। अच्छा, असां नेचर दे नाल आसे हुण साइंस दे नाल। अच्छा, तुहाडा क्या ख्याल है कि तुसीं समझदे हो कि इलेक्शन थींदे पैन 8 तारीख को? कुछ हुण डाउट्स शुरू थी गए। अच्छा, पहले तो पूरी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आखा ना कि पत्थर ते लकीर है, असां दिता तारीख दी है तो इहदे ते होसन उस वेले तक तो बड़ा ख्याल आई कि बिल्कुल 100% इम्कान ही आई। लेकिन ऐसे ऐसे हुण डाउट्स जड़े ने शुबहात शकूक शुबहात सामने आ रहे हैं कि पक्के यकीन नाल कुछ नहीं आ सकते। ये भी एक अंदाज़ा है कि अगर इलैक्शन थी भी गए
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਪਾਸੇ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਨ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ رائے ہے کہ الیکشن اگوں چلا بن جائے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، وہ چونکہ کے پی کے میں ان کا زیادہ ووٹ بینک بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی ہے، تو کے پی کے آج کل حالات دہشت گردی کے حوالے سے ان کے اوپر حملے بھی ہو چکے ہیں، حالات کافی خراب ہیں، اور اوپر سے سردی بھی بہت زیادہ ہے اور وہ سارا ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. لیکن ہماری پارٹی کی رائے مسلم تو یہ لیگ ہے کو کہ سپورٹ نہیں کریں دی. مسلم لیگ نون تو چاہتی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، اور جو عوام کی رائے وہ سامنے آنی چاہیے، اور عوام کی رائے کا احترام کرے گی مسلم لیگ نون. تو تکاؤنی وہ تو ہو سکتا ہے، تکالیف ہیں، حالات جو مشکلات پی تو کے میں ہیں. آج ہیں اس سے پہلے بھی خراب حالاتوں میں الیکشن ہوئے ہیں. باقی ایک قرارداد کی بات میں ضرور کروں گا کہ جو آپ نے قرارداد فرمایا جو سائڈ میں پیش ہوئی، قرارداد پیش کرنے والا، اس کو سیکنڈ کرنے والا، اور جو چیئرمین بیٹھا ہوا تھا اس کو 109 میں جس کا نام شامل ہونا چاہیے، یہ تینوں ایک ہی نرسری سے فیض یاب ہوئے ہوئے ہیں. اچھا، وہ تینوں کو لانے والی وہی فیض یاب نرسری ہے، تو اس لیے اس کا تعلق نہ تو کسی پارٹی سے ہے، وہ ایک مخصوص طبقے سے ہے، اور جو اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اس کو کنڈیم کی ہے. الیکشن ہونے دیکھیں جی، الیکشن کے حالات بالکل ہیں، سازگار ہے، عوام کا ذہن بن چکا ہے. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، جہاں پر بھی ہو الیکشن ہونا چاہیے، اور الیکشن ہوگا انشاءاللہ. میں مفتی صاحب تھوڑا سا ڈیفر کروں گا، بلکہ سینٹ دے وچ تے مسلم لیگ نون دا جڑا سینٹر ہے افنان اللہ انہیں بھی ریجیکٹ کیتے. 8 فروری کو الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. اس قرارداد کو میں نے عرض کی نا، وہ 3 بندے اچھا، جنہوں نے قرارداد پیش کی، جس نے سیکنڈ کیا، اور جو اوپر چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، یہ تینوں ایک ہی نرسری ہو، فیض حمید نرسری کے یہ پیدا کی ہوئی تینوں چیزیں ہیں. تو یہ اسی مخصوص ایک ابہام ڈالنے کے لیے وہ قرارداد تھی، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے قرارداد کی. الیکشن انشاءاللہ ہوں گے کسی نے اور سپورٹ نہیں کیا. بالکل اس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا لوگ، مفتی صاحب، اور ہوگا election. جو کہ پروگرام دا بیلا بھی مقدہ پہ اور گالی بہت زیادہ ہیں، 8 فروری الیکشن دا دہاڑا کیا آخنا چاہو کہ عوام اون دہاڑے گھر باہمن یا ووٹ پاؤن کتے گھر تو جڑا بھی جمہوریت پسند آدمی ہے وہ یہ آ کے کہہ ہی نہیں سکتا کہ گھر باون، بلکہ انہوں کو تو چاہیے ہے کہ جڑے گھر بیٹھے ہوئے تھوڑے علیل، تھوڑے ہلکے پھلکے بیمار، عمر رسیدہ لوگ ہیں، انہوں کو بھی گھن کے آون. اور دوجا یہ کہ جڑے عموماً ڈٹھا گیا ہے کہ نوجوان جڑے ہیں جڑے نوے ووٹ بنے ہوئے ہیں، کئی دفعہ وہ چھٹی منے دیں اور کرکٹ کھیڈ دیں سڑکاں تے اور ووٹ پاون نہیں ویندے. انہاں کی تے درخواست ہے کہ بڑا اہم پوائنٹ ہے پاکستان دی ہسٹری چ، اندے ووٹ ضرور پاؤن مہینہ چاہیے. رانا نذیر سعید صاحب، تہاڈا کیا پیغام ہو سی کہ اگر نون لیگ دا امیدوار موجود کوئی نہیں تو ول بھی ووٹ پاؤن کتے آؤ؟ بالکل ڈالنے چاہیے. اچھا، میں اپنی قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ساری قوم کو ووٹ ڈالنے چاہیے، بھرپور شرکت کرنی چاہیے 8 فروری کے الیکشن میں، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستانی قوم جو ہے جمہوریت پسند قوم ہے اور یہ جمہوریت کو پسند کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون قوم کی رائے کا احترام کرے گی، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ الیکشن جیتے گی. جی نشید عارف گورنر صاحب، میں تو یہ کہوں گا جی کہ نوجوان ہمارے یوتھ جو ہے وہ پاکستان میں میجورٹی میں ہے. یوتھ سے میرا یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک نوجوان لیڈر کے اوپر اعتماد کریں، اس کو موقع دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اس کے نانا نے ایک گرے ہوئے پاکستان کو دوبارہ اٹھایا تھا، ایک 2 لاکھ پاکستان کو اٹھایا تھا، انشاءاللہ بلاول میں پوری کریج ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا، اور جتنے بھی پیچھے جو نیگیٹیوٹی ہو چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی الحمدللہ ہمیشہ سے پرو پاکستان رہی ہے اور متحرک ہے. اور مجھے پورا یقین ہے 8 تاریخ کو ہر وہ محب وطن پاکستانی جو فیڈریشن سے محبت کرتا ہے، اپنی مٹی سے محبت کرتا ہے، وہ تیر کو ووٹ ڈالے گا. یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ. مطلب وہ ایمان دی سطح تک پہنچ گئے. کیا آپ دیکھو مفتی صاحب تو صاحب دوئے مہمان جڑے نا اپنی اپنی پارٹی دے حوالے نال گال کرندے پے. اصل گال ہے کہ تسی کہیں کو ووٹ دیو، تہاڈی پسند جیڑی ہے اون دا اظہار تھی ہونا چاہیے. اصل گال یہ ہے کہ تسا گھر نہ پاؤ، تسا بیلٹ پیپر تے مہر لاؤ، او کو بیلٹ باکس وچ پاؤ اور شام کو وال انتظار کرو. بڑی شاندار گفتگو اج دے پروگرام دے وچ جناب عبدالجبار مفتی صاحب تساں، جناب رانا نذیر صاحب تساں اور جناب نشید عارف گورنر صاحب. اور اچھی گال یہ تھی کہ اج غصے وچ کوئی نہیں آئے، جذبات وچ نہیں آئے. ظاہر ہے موسم دے اثرات بھی ہوندے. میں بھی سمجھدا کہ 8 فروری دا جڑا دہاڑا ہے وہ ایک ایو جا دہاڑا ہے کہ سب کو دہاڑے گھر نہیں باہنا چاہیے. ووٹ دی طاقت سب تو زیادہ طاقتور ہے. جمہوریت دے وچ ووٹ دا جڑا استعمال ہے وہ بہت زیادہ اہم تھی ویندے. اور میں ہمیشہ آدا کہ منتخب نمائندہ جڑا ہے وہ
اون تو بہتر ہے جڑا کہ نامزد کیتا بندے جمہوریت ہو سی سارے فیصلے اچھے تھی سن ملک مضبوط تھی سی اور عوام دے مسائل بھی حل تھی سن کیڑی پارٹی جیت دا ہار پیسی کی کو تالیاں دی جرو دے وچ اپنے گھر اونڈھاڑے گھن کے آیا وے سی اور کون 8 فروری کو اداس ہو سی اساں فی الحال کچھ نہیں آکھ سکتے لیکن یہ دے پیاں کہ انشاءاللہ الیکشن نیڑے ہے 1 مہینے تو گھٹ عرصہ رہ گئے شدید ٹھڈ بھی ہو سی تو ول بھی انشاءاللہ پاکستانی قوم اپنے ووٹ دا استعمال کرن کے گھراں تو بہر نکل سی اور میں سمجھدا کہ ہر باشعور پاکستانی کو جمہوریت دی مضبوطی کیتے اپنے ووٹ دا حق استعمال کرنا چاہیے ان دی وجہ ہے کہ مضبوط پاکستان اور مضبوط پاکستان دا مطلب ہے کہ ایک مضبوط مستقبل اپنے بالاں کیتے اور سارے کیتے یہ نال سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تو اجازت دے سو سونے اللہ دے حوالے